A ball rolls without sliding on a smooth horizontal floor with V naught is 7. Initially, this ball is going with V naught and omega naught. This is rolling, so this is 7 meter per second towards the wall. So there is a vertical wall which it is going. If the coefficient of restitution is zero point 0.7, so they have told you that E is 0.7, it is given in the book. 7 है 0.7. Calculate the velocity of the ball long after collision. See, they have told you at time 0 this is the condition. After some time it will bang with this wall. Can you tell me, just after banging with the wall, impact with the wall, what is the velocity which it will have? Hello? 0.9. 0.7 times of V naught. No? Because it will become, when you should know that if it is going with V and if the coefficient of restitution is E, then it will come back with EV. This we should know. Okay. But the omega will remain this way only. Then your friction will act, and the friction will cause. In which direction friction is going to act? Can anyone tell me? In which direction is friction acting on the ball? Forward or backward? Hello? To the right. To the right. The friction will cause this omega to become ulta. So this omega naught will become 0, and then it will become some omega in the other direction. So this will be V and this will be omega. And at this instant, can I say V will become equal to R omega? Because it will start pure rolling. Hello? Hello? Yes or no? Yes, sir. ओके आपको क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द वेलोसिटी. यहाँ पे टाइम इज बाईपास, याद है ना? बाईपास टाइम. तो जब भी टाइम बाईपास करना रहता है तो कौन सा फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं? किसी को याद है? हेलो? व्हेन वी वांट टू, लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था, अगर आपको बाईपास टाइम करना है, टाइम नहीं फाइंड करना है, तो व्हाट आई यूज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ना. हेलो? हेलो? Can I say this is L initial and this will be L final? This will be initial and final about the bottommost point. So this is initial point and this will be a final point. Okay. Can I say L initial is equal to L final about bottom most point? Hello. Can you tell me what is L initial? L initial क्या रहेगा? हेलो? L का फॉर्मूला पता है ना? It is mvr plus minus ic omega. चलो बोलो. So L initial क्या हो जाएगा? It will become m 0.7 v naught about the bottommost point, distances r, and omega is ulta, so it will become minus ic into omega naught. L final क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m v r final v r plus ic omega. But over here we know this v is equal to r omega. So this omega की जगह can I write v by r? ये m हो गया 0.7 v naught r minus ic omega naught is equal to mvr plus ic into omega को लिख सकते हैं v by r. हेलो बेटा, आए ऑल देयर?
Yes, sir. अच्छा, व्हाट बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बॉल है यहाँ पर, ये बॉल है, तो बॉल इज कौन सा स्पीयर पकड़ना है? ओके, इट विल बी सॉलिड स्पीयर, तो आई सी क्या रहेगा? 2/5 mr² रहेगा। बाकी सब तो मालूम है ना आपको, देखो ना, आई सी मिल जाएगा 2/5 mr², ये आई सी 2/5 mr², और बाकी तो कैंसिल होके आपको v का वैल्यू आंसर में मिल जाएगा। हेलो, कैन यू डू इट? यस और नो? ये v फाइंड करना है, ये वाला। यस और नो? कॉमन निकल के, Yes, sir. तो ये टाइम को अगर बाईपास कर दिया। अच्छा, अगर आपको टाइम पूछता तो मैं क्या करता? तो कंसिडर दिस टू बी टाइम 0 एंड दिस टू बी टाइम t। याद है ना आप लोग को? Yes, sir. एंड वी वुड हैव अप्लाइड v इज r ओमेगा, अगर आपको टाइम पूछेगा, बट यहाँ पे टाइम नहीं पूछा है, and they have only asked you this velocity, so you can find this velocity and get the resultant answer which is there. So this was your 19th question. Okay, I'll come to So can we also assume friction to be mu? friction to be, Coefficient of friction to be mu. हाँ, coefficient of friction is, coefficient of restitution की बात कर रहे हैं, coefficient of friction No, की sir. बात? I'm saying that after rebound, we assume the coefficient of friction to be mu. Mu, yes, mu, yes, they will give you in the question generally, but mu ले सकते हैं यहाँ पर, yes, correct. 21st पे आते हैं, स्पीयर डिस्क हुप। हुप मतलब एक रिंग है, फॉर्म्ड made up of homogeneous material having the same radius and mass. They are released from rest at the top of 30-degree incline and rolls down without slipping through a vertical distance of 2 meters. Through a vertical distance of 2 meters. What is their speeds at the bottom? I am not doing the whole sum. Can you tell me what is the speed when it reaches the bottom? चलो, ये जब नीचे आएगा तो उसके पास स्पीड रहेगा ना। किसी को याद है ये v का फॉर्मूला? Root 2 gh upon 1 plus k square by r square. एंड k स्क्वायर बाय r स्क्वायर सबको आपको पता ही है, दैट इज द a पार्ट। hp पता है आपको, एवरीथिंग यू नो। Vertical distance of 2 meters. So vertical distance is also given as, no, indirectly they have given you h only as 2 meters. Okay, and second thing, chalo, what is the frictional force in each case? So what is the formula for frictional force? किसी को याद है? Friction required is mg sin theta upon 1 plus r square by k square. Do you remember this formula? Hello? Yes, sir. This is friction required. इतना फ्रिक्शन आपको मांगता है हर एक केस में। अगर इतना नहीं रहेगा तो बॉडी विल स्टार्ट फॉरवर्ड स्लिपिंग, it will start slipping. Next one, see, if they start together at time 0, what time does it take to reach the bottom? याद है फॉर्मूला? अंडर रूट 2s by a. हेलो, we shall derive it. अंडर रूट 2s by a को लिख सकते हैं g sin theta, g sin theta upon 1 plus k square by r square, and s in terms of h भी लिख सकते हैं ना, sin theta is h by s, so s will be h by sin theta, हो जाएगा 2h by g 1 plus k square by r square root of that into 1 upon sin theta. सही है ना? हेलो, Yes, sir. ये रूट के बाहर है ना sin theta। ये फॉर्मूला पता लग गया आपको, एक बार ये सब फॉर्मूलाज आपको पता लग गया तो यू कैन फाइंड द रिजल्टेंट। इट वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। लेकिन कभी कभी इनका मूड होता है भाई इजी क्वेश्चन देना है इनको, तो एडवांस के अंदर तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, डायरेक्ट फार्मूला वाले क्वेश्चन दे पुट एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर। ठीक है,
That's the same doing 20 थर्ड वाला करता है 23rd ध्यान देना हमने a uniform stick of length L and mass M is hinged about one end and released from rest at an angle of theta naught with respect to vertical. पहले ये vertical है initial angle it is there with respect to vertical is theta naught. Okay, this is at time 0. Show that when the angle becomes theta, so जब angle theta हो गया time t पर the hinge exerts a force Fr along the stick and Ft perpendicular to the stick and Fr is given and Ft is given. तो ये hinge force के बारे में जो hinge है इसके force के बारे में पता करना है. ओके तो ठीक है कोई प्रॉब्लम थोड़ी है. कैन आई से देखो इधर से इधर तक इसका सेंटर ऑफ मास आ चुका है ना बिकॉज वी हैव टू डील विद सेंटर ऑफ मास बिकॉज इट इज अ कंटेन्स बॉडी. हाइट का डिफरेंस कितना हुआ है? हेलो 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 देखो ना ये L/2 है ये पूरा रहेगा L/2 cos थीटा नॉट. हेलो बराबर है क्या? यस और नो? Yes, sir. वैसे ही नीचे वाले का क्या हो जाएगा? ये क्या रहेगा? L/2 cos थीटा. यस और नो? Yes, sir. So what is the change in the potential energy? What is the height का change? अरे यार बोलो ना यार. L/2 cos theta minus cos theta naught. cos छोटो थीटा माइनस बड़ो थीटा. ये याद रख लेना सीधा. जब भी ऐसे होता है ना जब भी बड़े एंगल से छोटे एंगल पर आता है और एक रॉड होता है तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज L/2 cos ऑफ छोटो थीटा माइनस cos ऑफ बड़ो थीटा. यस और नो? बिकॉज cos छोटा थीटा बड़ा होता है ना ऑब्वियसली. हेलो डू यू नो दिस? यस और नो? तो ये सब करने की जरूरत नहीं है मतलब डायरेक्टली भी आप लोग याद रख सकते हो. कैन आई से डिक्रीज इन PE is increase in KE. So mgh is L/2 cos of छोटो थीटा minus cos of बड़ो थीटा. Sorry. And it will become half I omega square. I कितना है? L I square by 3. 3 into ओमेगा स्क्वायर. तो यहाँ पर उसको ओमेगा मिलेगा इस इंस्टेंट पर जब वो आया ना इधर टाइम टी पर उसको ओमेगा मिल जाएगा. तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आपको मिल जाएगा आएगा देखो ना एम एल एम एक एल कैंसिल हो गया 6 हो गया ये 2 भी उड़ गया तो ये हो गया 3g/L ओमेगा स्क्वायर नहीं cos ऑफ छोटो थीटा माइनस cos ऑफ बड़ो थीटा. यस और नो? हेलो Yes, sir. ओमेगा स्क्वायर आपको मिल गया. सर आपने ओमेगा क्यों ढूंढा? ओमेगा क्यों नहीं ढूंढा? ओमेगा स्क्वायर क्यों ढूंढा? क्योंकि पता चलेगा भी कभी कभी. Ah, fine. Now can you tell me, suppose ये रॉड के बारे में अगर मैं बात करूँ ये ऐसे है एंगल थीटा की बात कर रहा हूँ. इसका वेट जो है वजन जो है वो mg है. हमको मालूम है ये थीटा. तो अलोंग द रॉड कौन सा वजन एक्ट करेगा? परपेंडिकुलर टू द रॉड इज mg sin थीटा. हेलो डू यू एग्री विथ मी? यस और हेलो क्लियर है क्या? हेलो 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 यस और नो? Are you all there with me? Yes, sir. Now
कैन यू टेल मी, यहाँ से है ना एक हिंज फोर्स आ रहा है, हिंज फोर्स आ रहा है, हिंज फोर्स एक ऐसे फोर्स लेते हैं हम लोग, हिंज फोर्स दैट हिंज फोर्स विल बिकम कितना, एफ आर, कर सकते हैं ऐसे, हेलो, तो वही एफ आर इधर लगेगा और वही एफ आर इधर भी लगेगा। आर यू देयर विद मी, क्या करना चाह रहा हूँ Yes, sir. भाई? टेंशन की तरह है ना, पेंडुलम एंड टेंशन, याद है आप लोगों को? देखो ना, अगर हम टेंशन की बात करें, पेंडुलम एंड टेंशन की, वैसे ही तो था, ये बॉब था, ये टी था, वैसे ही टी यहाँ पर आ रहा था, अब ये टी से खींच रहा है तो ये भी तो हिंज जो है वो टी एक्सर्ट करेगा ना इधर। हेलो 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 हेलो, Yes, sir. मगर हमको तो इस पॉइंट पे फोर्स लगाना है ना, तो कहना इसी, ये तो क्या है, ये डायरेक्शन में क्या, एम जी कॉस थीटा, और कहना इसे ये वाला जो पार्टिकल है वो सर्कल में जा रहा है, तो इधर मैं क्या लिख सकता हूँ, एम वी स्क्वायर बाय आर या एम ओमेगा स्क्वायर आर, यस और नो? हेलो, Yes, sir. तो कहना इसे टी की जगह यहाँ पे एफ आर है, या टी पकड़ लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कहना इसे एफ आर, कहना इसे अलोंग रॉड, एफ आर अंदर है और बाहर इज एम जी कॉस थीटा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बाहर है, विल बिकम एम ओमेगा स्क्वायर आर, बट आर इज एल बाई टू। यस और नो? अब ओमेगा स्क्वायर को उठा के यहाँ पे डाल दो, ये वाला ओमेगा स्क्वायर को, ये वाला दिख रहा है, एफ आर विल बिकम एम जी कॉस थीटा प्लस एम इंटू एल बाई टू, 3g बाई एल, कॉस छोटो थीटा माइनस कॉस ऑफ बड़ो थीटा, यस और नो? हेलो, Yes, sir. ये देखना, ये कैंसिल हो गया, कितना आता है एफ आर, आता है देखो एम जी कॉस थीटा प्लस 3/2 mg कॉस थीटा माइनस 3/2 mg कॉस थीटा नॉट, ये तो मिल गया, 3/2 mg कॉस थीटा प्लस ये हो जाएगा 5/2 mg कॉस थीटा माइनस 3/2 mg कॉस थीटा नॉट। क्या ये मैच कर रहा है रिजल्ट के साथ में? हेलो, इस रिजल्ट को देखो जरा, क्या मैच कर रहा है क्या? Yes, sir. हाँ, तो मैच कर रहा है मतलब यही है, ठीक है ना, ये मिल गया। अब बेटा वही चीज घुमा रहे हैं हम लोग, बार 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 अलग अलग सिचुएशन के अंदर हम लोग वही चीज कर रहे हैं। अच्छा, एफ टी चाहिए अभी, एफ टी, अभी एफ टी के लिए हमको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखना पड़ेगा, तो एफ टी के लिए अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करूँ, ध्यान देना अभी, ऐसे एफ टी मैं यहाँ पर पकड़ता हूँ ऐसे परपेंडिकुलर, आपको तो मालूम है ये एम जी है, can I say in this direction it will have some tangential acceleration also? हेलो, हाँ ना बोलो, Yes, sir. और है ना वही पहले कर चुके हैं हम लोग। अच्छा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालने के लिए अल्फा निकालना पड़ेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर अल्फा? अरे यार बोलो, हेलो, mg/2 sin theta. एम जी एल बाई टू साइन थीटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ना, ये अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज एम एल स्क्वायर बाई 3, तो अल्फा यहाँ से आपको मिलेगा 3g/2 साइन थीटा बाई एल, ये मिल गया। तो ए टी क्या रहेगा? हेलो 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 हेलो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भाई, हेलो, कुछ समझ में आ रहा है क्या आप लोग को? Yes, sir. मिल जाएगा 3/4 g साइन थीटा, ए टी मिल जाएगा।
अभी 80 के डायरेक्शन में काम करते हैं हम लोग। देखो फिर से देखो, रॉड है, ये एफ है, ये एम जी इधर है, तो ये तो एम जी साइन थीटा रहेगा ना, ये 80 ऐसे है, सही है ना। अब ये डायरेक्शन में अगर हम लोग लगाते हैं, ये डायरेक्शन में अगर एफ नेट एस हमें लगाते हैं, ये वाले डायरेक्शन में एफ नेट एस हमें लगाते हैं, तो लगा के देखो जरा, एफ टी क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा माइनस एफ टी इज इक्वल टू एम इंटू ए टी। हेलो हाँ ना बोलो। Yes, sir. तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ टी की जगह क्या लिखना है, नहीं मालूम नहीं है, एफ टी एम इंटू ए टी की जगह लिखना है 3/4 जी साइन थीटा। एफ टी उधर से इधर आ गया, एफ टी इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 1/4 एम जी साइन थीटा। डू यू एग्री? हेलो देखो Yes, ना sir. यार, ये भी इधर से मैच कर रहा है, क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, Yes, sir. क्लियर है ना? तो आपको पता ही है रॉड के अंदर दो फोर्सेस होते हैं, एटी फाइंड करने का रहता है, सेंटर ऑफ मास कंसिडर करता है। रॉड के पहले भी बहुत सारे सम्स हम लोग ने किए हैं, तो रॉड का यही चक्कर है पूरा। जब भी रॉड का सम आता है तो आपको एटी फाइंड करने का रहता है, ए आर फाइंड करने का रहता है, एंड change in potential energies, change in kinetic energy, you have to concentrate the whole mass at the center of mass। पूरा रॉड का चक्कर ये है, ये याद रखना। तो आगे जितने भी रॉड वाले समझ आते हैं आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे ही करना पड़ेगा। I'll come to the 26th question। ध्यान देना अभी बस, अभी फटाफट फटाफट हो जाएगा। It will be the same thing। A stick of length L lies on a horizontal table, it has a mass m and is free to move in such a way on the table, in any way on the table, मतलब ये घूम सकता है, चल भी सकता है। फिर से पढ़ता हूँ, stick of length L lies on a horizontal table, it has mass m and it's free to move in any way on the table। hinge पिन नहीं है। A ball of mass m is moving perpendicular to the stick at a distance b from the center, so it is at a distance d from the center। ठीक है, ये d है। in such a way that with speed v and collides elastically as shown in the figure। तो elastic collision हो रहा है। what quantities are conserved in that collision? तो can you tell me what quantities are conserved? इतना तो आता रहेगा ना यार। एक्सटर्नल नेट तो Momentum. जीरो, दोनों मोमेंटम कंजर्व्ड है कि एक ही है? Both. बोथ, हाँ। नेट एक्सटर्नल टॉर्क भी जीरो है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, ये कैच है, ये दोनों कैच है बस, इसके कारण हो जाएगा आपको सब। चलो शुरू करो। कैन आई से इनिशियल मोमेंटम अगर फाइनल मोमेंटम के बराबर है तो कैन आई से छोटो एम वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? बड़ो एम वी collides elastically as shown in the figure। तो ये एंड यहाँ पर ये देखो लास्ट टाइम में दिया है बॉल कम टू रेस्ट इमीडिएटली। हेलो, मतलब टकराने के बाद में इसका इसका स्पीड कितना हो गया? 0. जीरो, और ये चलने लगा ना विथ वी कॉम, सही है ना? हेलो, Yes, sir. सही है। वी कॉम क्या हो जाएगा? छोटो एम वी बाई बड़ो एम, ये मिल गया मेरे को। अब आगे बढ़ता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम फाइनल एंगुलर मोमेंटम। चलो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है पार्टिकल का? MVD. एम वी डी। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? अबाउट, दिस इज अबाउट न्यू सेंटर ऑफ मास, बट न्यू सेंटर ऑफ मास एंड ओल्ड सेंटर ऑफ मास आर द सेम ना, बिकॉज पहला वाला बॉल तो रुक गया है ना, अगर चिपक जाता तो सेंटर ऑफ मास चेंज होता ना। हेलो, आर यू कैचिंग माय वर्ड्स मैन? कम ऑन यार प्लीज। Yes, sir. तो चिपकता तो सेंटर ऑफ मास चेंज होता, चिपका ही नहीं है तो क्या होगा? तो व्हाट विल बी द फाइनल एंगुलर मोमेंटम ओवर दिस पॉइंट? एम वी आर तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ आई सी ओमेगा बचेगा ना। हेलो, Yes, sir. ये आई सी ओमेगा ऐसे बचेगा, पहले कर चुके हैं। एम वी डी
is ml square by 12 into omega. ओमेगा आपको मिल गया 12 mbd by बड़ो ml square, ये भी मिल गया मेरे को. What must be the mass of the ball? तो छोटा m निकालने का बोला. अच्छा, और एक चीज बोल रहा है कि इट इज विच कोलिजन? Elastic. E का वैल्यू 1 है, RVOS अपॉन RVOA, बट मैंने आपको ट्रिक बताया था, दिस हैज टू बी अप्लाइड एट द पॉइंट ऑफ, हेलो याद है ना? Yes, sir. ये सब ट्रिक्स है, बार बार वही चीज रिपीट होगी. ओके, मैं क्या कह रहा हूँ, ये मेथड को पक्का करो, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट जो आपका एग्जाम में लगेगा ना, वो बहुत कम हो जाएगा. देखो, चीजों को अलग अलग मेथड से आप कर सकते हो, आप 4 मेथड यूज करो, आप 5 मेथड यूज करो, उसके कारण क्या होता है कि आपको टाइम नहीं बचेगा एग्जामिनेशन के अंदर. देखो, टाइम उधर बहुत कम रहता है, एडवांस एग्जामिनेशन, मेन एग्जामिनेशन, तो आपको एक मेथड पक्का करना है, 2 मेथड पक्का करके उधर जाके सिर्फ करके आना है. ओके, RVOS upon RVOA. What is RVOS? Relative velocity of separation क्या है भाई? Vcom Point plus of, d point omega. of, हाँ, ये पॉइंट का हो जाएगा Vcom plus R omega, that is d omega. RVOA क्या है? V है ना? हेलो, are you there with me? Yes, sir. अभी ये उठाओ, सब कुछ उठाओ और इसमें डाल दो. तो Vcom की जगह मैं लिख सकता हूँ छोटो mv by बड़ो m, d ओमेगा, ओमेगा की जगह 12 mbd, d स्क्वायर हो जाएगा बाय ml स्क्वायर. सही है ना? हेलो, इज इक्वल टू v. ये v और v तो कैंसिल हो गया. छोटो m 1 by कैपिटल M d स्क्वायर 12 ml स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बराबर क्या? हेलो, Yes, sir. तो यहाँ से m मिल जाएगा ना आपको. तो अरे यस और नो में LCL ठीक है ना? हेलो हेलो हेलो, क्लियर हुआ मेथड? तो याद रखना, Sir. ये अभी टाइप मेरे दिमाग में क्या बैठा, आपके दिमाग में क्या बैठा कि भाई टेबल पे जब भी एक रॉड रखा है तो ये अप्लाई करना है और ये अप्लाई करना है. गेटिंग इट? हेलो, Yes, sir. और अगर इलास्टिक कोलिजन है या ये कोलिजन है तो ये अप्लाई करना है. देखो, ये सम पहले भी कर चुके थे हम, बस ये सम को बार बार प्रैक्टिस करो तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन से टाइप्स अप्लाई करना है, कौन से फॉर्मूला अप्लाई करना है. जब भी रॉड का सम आया है, टेबल पे रखा है, तो ये अप्लाई करना है. क्लियर है? ओके, फाइन. There's a very nice question that is 31 पर आता है. 31, ये सब अच्छे वाले हैं, ट्राई करना. ये पहले भी कर चुके हैं हम लोग, ये वाला भी कर चुके हैं. जब बॉब नीचे गिरेगा तो पीछे पड़ जाएगा, वो मोमेंटम वाला सब. 31 रॉड वाला समय कैसे? Show that if a rod is held at angle theta to the horizontal and released, its lower end will not slip. Lower end will not slip मतलब क्या? उसने hinge बना दिया उधर. हेलो हेलो, Yes, sir. दिस एंड विल नॉट स्लिप मतलब इसने इसको पकड़ बना लिया. किसने पकड़ बनाया? फ्रिक्शन ने बनाया पकड़. ओके, इफ द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द रॉड एंड द ग्राउंड इज ग्रेटर देन दिस, मतलब ये हमको प्रूव करना है. ठीक है, हम लोग देखते हैं. तो ये थीटा एंगल पर है. क्लियर है? कैन आई से पॉइंट पी पकड़ता है. पॉइंट पी इज
instantaneously at what sir? सही है ना? हेलो Yes, sir. बोल रहा है मोमेंटरीली एट रेस्ट, इंस्टेंटेनियसली एट रेस्ट, जो भी है इस समय पर वो रेस्ट पर है। तो मुझे क्या ढूंढना है? मुझे म्यू का वैल्यू ढूंढना है। अच्छा, वेयर इज पॉइंट पी एबल टू स्लिप? वेयर इज इट ट्राइंग टू स्लिप? To the left. तो फ्रिक्शन किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा ना बेटा। हेलो, Yes, sir. कैन आई से दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन? सही है। ये रॉड है तो ये एम्प्टी रहेगा। आर यू देयर विद मी? बोलो। Yes, sir. चलो शुरू करते हैं। और ये L/2 है ना? ठीक है, अब मेरे को एन ढूंढने का, बिकॉज म्यू एन पता करना पड़ेगा फ्रिक्शन के लिए। हेलो, यस और नो? Yes, sir. तो देखो जनरल केस में क्या है कि आपको है ना एटी और एसीपी निकालना पड़ेगा जब भी रॉड का सम आएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको एटी और एसीपी निकालना पड़ेगा, एटी एंड एसीपी एट दैट इंस्टेंट। ये बेसिक रूल है, उसमें थोड़ा मैनिपुलेशन हो जाएगा। तो एटी एंड एसीपी, एटी निकालने के लिए आपको L/2 अल्फा की जरूरत पड़ेगी। अल्फा कहाँ से मिलेगा? अल्फा कहाँ से Tau मिलेगा? by I. टाउ बाय आर। टाउ क्या रहेगा? अबाउट दैट पॉइंट, अबाउट द पॉइंट पी। MGL by 2. ओके, एम जी इंटू L/2 cos थीटा ना बेटा। Cos theta. By moment of inertia about that point is ml square by 3. तो ये पहले फाइंड किया 3/2 g cos थीटा by l। एटी क्या रहेगा? L/2 अल्फा। L/2 ये हो जाएगा 3/4 g cos थीटा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रॉड का जब भी सम आता है तो एटी और एसीपी पहले निकाल लो। ये तो मिल गया एटी। अब what is the ACP at this instant? Hello, can you tell me what is the ACP at this instant? Can you tell me? आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन So में we क्यों? can't see the slide. एक मिनट। आप लोग सोचो ना, एसीपी का फॉर्मूला क्या है? तब तक लोड हो रही है। एसीपी का क्या फॉर्मूला है बेटा? V square by R. ओमेगा स्क्वायर आर। हेलो, Yes, so what sir. is the omega at that instant when I am leaving it? 0. जीरो। तो एसीपी जीरो है ना वो इंस्टेंट पर। हेलो, क्या बोल रहा हूँ मैं? हेलो, यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो याद रखना एसीपी जीरो है एंड एटी सिर्फ है, दैट इज 3/4। कितना आया था बेटा? 3/4 G cos theta. हाँ, 3/4 जी कॉस थीटा आया था। सही है ना?
दिख रहा है आपको? स्लाइड दिख रहा है अभी? हेलो? Yes, sir. स्लाइड उड़ गया था अच्छा। उसको जो फाइंड किया था वो लिख लेता हूँ। वही कह रहा है ये ऐसे था, थीटा है, ये n था, दिस इज म्यू n, दिस इज mg, दिस इज at, एंड यू नो acp कितना है? 0 है। हेलो, आर यू देयर? हेलो? Sir, और et कितना आया था यार? बोलो, मैं 3 भूल by गया। 4 g cos theta. 3/4 g cos थीटा है। ACP is omega square r, that is L by 2, but omega at that instant is 0. ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, ये 80 के दो टुकड़े कर देता हूँ। ये जो 80 है ना, बिकॉज n ढूंढना पड़ेगा ना मेरे को। अब या तो n के टुकड़े करो, mg के टुकड़े करो, उससे अच्छा है कि 80 के टुकड़े कर दो। हेलो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हेलो? Yes, sir. देखो mg और n तो एक ही डायरेक्शन में है, तो कोई टेंशन नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, x और y डायरेक्शन में 80 के टुकड़े कर देता हूँ। तो 80 के अगर मैं टुकड़े कर दूं, ये थीटा ही है ना, ये क्या हो जाएगा? हेलो? यस और नो? Yes, sir. बिकॉज एसीपी तो 0 है, तो एसीपी अगर होता पीछे तो मैं माइनस माइनस करता ना। याद है पहले हम लोग कर चुके, एसीपी को ऐसे करते हैं। हेलो? और एसीपी को Yes, ऐसे sir. करते हैं, याद है? कर चुके हैं यार वो सम। न्यू एडिशन इज वेरी नाइस। पहले के डीसी पढ़ने में थोड़े सम्स नहीं हुआ करते थे, 10%, बट इसने ये एडिशन में पूरा कवर कर दिया। नाउ चलो एफ नेट इज हमें वाई डायरेक्शन में लगाओ। बोलो। हेलो? mg minus x इज एम इनटू, mat cos theta. ये क्या हो जाएगा? एम इंटू ए टी, ए टी इज 3/4 जी कॉस थीटा कॉस थीटा। ये हो जाएगा 3/4 एम जी कॉस स्क्वायर थीटा। यस और नो? हेलो? Yes, sir. ये क्लियर है? तो यहाँ से n आपको दिखाई देगा, दैट विल बी एम जी 1 माइनस 3/4 कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो भाई। हेलो? Yes, sir. मतलब चीज वही है, स्टार्ट में हम लोग इधर से ही करते हैं, स्टार्ट ये फिर एफ नेट इज एम ए लगाते हैं। अब बोलो, एफ नेट इज एम ए इन एक्स एक्सेस। यस सर, एक्स एक्सेस में एफ नेट इज एम ए लगाना है। बोलो क्या रहेगा? Mu n is equal to mat sin theta. म्यू एन इज एम इंटू ए टी साइन थीटा। म्यू एन यहाँ से उठा लेंगे, एम जी 1 माइनस 3/4 ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा is m into 80. 80 is 3/4 of g cos theta sin theta। क्या सही लिख रहा हूँ मैं? हेलो? Yes, sir. ये mg और ये mg तो वैसे ही चला गया। म्यू का वैल्यू आपको आएगा, कितना आएगा भाई? 3/4 ऑफ cos थीटा sin थीटा on 1 माइनस 3/4 ऑफ cos स्क्वायर थीटा। इसको और मैनिपुलेट कर सकते हो आप लोग। देखो कुछ हो सकता है क्या इसका? 3 sin थीटा cos थीटा नीचे है, 4 नीचे आ चला जाएगा, 1 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, बराबर है? 4 माइनस 3 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यस और नो? Yes, हेलो? sir. फिर
4 को लिख सकते हैं 3 + 1, हेलो, दैट इज 1 को लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, बराबर है, या cos स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 - sin स्क्वायर थीटा, चलेगा ना? Yes, sir. 3 cos थीटा sin थीटा हो गया 4 - 3 cos स्क्वायर थीटा। ये cos स्क्वायर थीटा को कैसे रिप्लेस करेंगे? हेलो, यस और नो? Yes, sir. आ जाएगा ना, ये आपको रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है, तो रॉड का समय फिर से, और रॉड नीचे गिर रहा है तो हमने AT और ACP निकाला, ACP 0 है एट दैट इंस्टेंट बिकॉज इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। बाकी तो आपको पता ही है, एफिनिटी MA लगाने का, एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर। भाई आप लोग को समझ में आ रहा है ना, ज्यादा समझ में आ रहा है ना लास्ट टाइम से? हेलो, Yes, sir. जितना ज्यादा बेटा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा वो पॉलिश होता जाएगा। we'll do 32 also is a nice question, 32 और एक सम, दो सम। आप लोग को शायद वाइवा भी है शायद, सचिन सर had called me up yesterday, कुछ है क्या Yes, वाइवा? sir. हाँ तो बाद में देखेंगे वो आएगा यार, वही ठीक है, दो सम ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो, 1/4 of the length of uniform rod of mass m and length L is placed on a horizontal surface and is held stationary in the horizontal position by means of a light thread as shown in the figure। तो ऐसे धागा हमने बांध दिया, the thread is burned and the rod starts rotating about the edge, ये घूमना चालू करेगा। find the angle between the rod and the horizontal when it is about to slide on the edge, मतलब वो फिसलना शुरू करेगा इस पॉइंट पे, बराबर है। the coefficient of friction between the rod and the surface is mu। देखो एक्चुअली क्या हो रहा है, एक्चुअली फर्स्ट सरफेस अगर मैं बनाऊं तो जब हमने धागा काट दिया तो ये रॉड ऐसे ही था, at this instant it was this way, बराबर है। और ये कह रहा है कि ये L/4 है, तो कहना इसे सेंटर ऑफ मास इधर रहेगा, ये पूरा L/2 हो जाएगा ना, तो ये L/4 हुआ कि नहीं? हेलो, आना बोलो। Yes, sir. L/4 है ना। अब दिस इज एट टाइम 0, अब ये नीचे गिरना चालू करेगा, ये गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, और ये पॉइंट जो है ये उसको बचा रहा है। हम लोग नेक्स्ट इंस्टेंट की बात करते हैं, नेक्स्ट इंस्टेंट पर क्या होगा, ये ऐसे हो जाएगा, सही है क्या? लेट दिस इनिशियल एंगल बी थीटा। अब ये वेट तो इधर का इधर ही है, mg के मैं बोलूँ दो कंपोनेंट हो जाएगा, एक ऐसा, हेलो, एक ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा, बराबर है क्या? हेलो, आर यू देयर? Yes, sir. कहना इसे कि ये थीटा है ना, ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये हो जाएगा mg sin थीटा। mg sin थीटा इसको क्या कर रहा है, क्या करने में हेल्प कर रहा है, स्लाइड करने में। हेलो, Yes, sir. mg sin थीटा उसको घसड़ने में हेल्प कर रहा है ना, हेलो, एंड mg cos थीटा उसको घुमाने में हेल्प कर रहा है। आर यू देयर विद मी? एकदम Yes, सिंपल sir. बात है। तो यहाँ पर है ना, जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा, कहना इसे उसका फ्रिक्शन इधर आने वाला है, यस और नो? क्योंकि ये पॉइंट पे घसड़ते हुए जा रहा है ना वो, तो फ्रिक्शन तो उस डायरेक्शन में ही आएगा ना, अलोंग द सरफेस आएगा ना। हेलो, वो पॉइंट के अलोंग द सरफेस, वो पॉइंट के अलोंग आएगा, बराबर है क्या? हेलो, हेलो, it is not touching the surface of the table, so it will not be along the table. Are you there with me? Yes, sir.
यही चीज है। अभी ये रॉड का सम है फिर से, रॉड के सम में तो आपको मालूम है स्टार्ट में एसीपी और एटी निकालना तो जरूरी हो जाता है। तो इस पॉइंट पे कहने से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी रहेगा और एसीपी भी रहेगा। इतना इतना क्लियर है आप लोग को? हेलो बोलो यार। यस सर। और मैं एक काम करता हूँ, इसको है ना एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस पकड़ता हूँ, चलेगा? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं चाहिए वो, आप सीधा सीधा भी कर सकते हैं मगर फिर सब तोड़ना पड़ेगा। हेलो आर यू देयर ना? ए सी पी ए टी सबको तोड़ना पड़ेगा ना, एन को भी तोड़ना पड़ेगा। तो बेहतर है कि ये एक्स और वाई एक्सिस पकड़ लो और एफ नेट इज एम ए लगा दो। शुरू करेंगे। सबसे पहले अल्फा निकालने का। अल्फा का फॉर्मूला क्या है? टाउ बाय टाउ कितना है? एम जी इंटू mg cos theta into l/4। एल बाई फोर है ना, सही है ना? हेलो, देखो ना ये डिस्टेंस हो जाएगा। हेलो 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 बोलो। देखो मैं इधर साइड में ड्रॉ कर ये भी है, ये थीटा है, ये भी थीटा रहेगा और ये तो एल बाई फोर है ना, ये हो जाएगा एल बाई फोर कॉस थीटा। डू यू एग्री विथ मी? हेलो, एल बाई फोर, सॉरी, बराबर है क्या? यस सर। और ये एम जी इंटू एल बाई फोर कॉस थीटा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व प्लस मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर ना। हेलो, यस सर। एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व सेंटर वाला प्लस मास इंटू डिस्टेंस इज एल बाई फोर का स्क्वायर, सो एल स्क्वायर बाई 16 हो गया ना, सही है क्या? हेलो, ये आंसर होता है 7 एम एल स्क्वायर बाई 48। ये बहुत सारे सम्स हम लोग है ना पहले सॉल्व कर चुके हैं। हेलो, याद है ना यार? अगर याद नहीं है तो एम जी एल बाई फोर कॉस थीटा एंड दिस आंसर इफ यू कैलकुलेट इज 7 एम एल स्क्वायर बाई 48। 4 12 का 48 तो ये हो जाएगा 12 जी कॉस थीटा बाई 7 एल। ये अल्फा मिल गया। तो ईटी क्या रहेगा बेटा? ईटी ईटी क्या रहेगा? ईटी 3/7 g cos theta। 3/7 जी cos थीटा, दैट इज एल बाई फोर ना। हाँ, 3/7 जी cos थीटा। कहानी खत्म नहीं हुई है ना, ये तो 80 मिला। अब एसीपी निकालना पड़ेगा। एसीपी निकालने के लिए ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा का जरूरत पड़ेगा। अच्छा, ओमेगा निकालने के लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ता है। हेलो हेलो, अरे मेरा बच्चा, यस इधर सर। ओमेगा जीरो था ना, इधर थोड़ी ओमेगा जीरो है। इधर थोड़ी ओमेगा जीरो है, इधर तो ओमेगा इज ओमेगा। यस और नो? हेलो, यस सर। कहना इसे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, वही वही काम जो हमने लास्ट टाइम किया था। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हुआ है बोलो यार? ये देखो ना, ये डिक्रीज हुआ है इधर से, इधर से इधर आया। ये तो हो जाएगा एल बाई फोर साइन थीटा। हेलो, यस सर। ये हो जाएगा एम जी एल बाई फोर साइन थीटा इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बट आई क्या है? 7 एम एल स्क्वायर बाई 48 है इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा। हेलो, हो गया, क्लियर है क्या? हेलो, कितना आता है? 24/7 जी साइन थीटा बाई एल। Are you there with me? Are you there with me? Are you there with me? Yes or no? यस सर। ये भी मिल गया। अब चलो शुरुआत करते हैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या रहेगा? m ओमेगा स्क्वायर
इनटू आर कितना है? L/4. हेलो, यस और नो? चलो खत्म अभी, एफ नेट इज एम ए, एक्स और वाई में। चलो एफ नेट इज एम ए लगाओ एक्स में। So there's no M in ACP. हाँ सॉरी, एफ एफ ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जी साइन थीटा साइन में करना है। एफ नेट इज एम ए, शुरू हो जाओ एक्स एक्सिस में। हेलो, क्या करने का? एक्स एक्सिस में कौन कौन है बोलो यार। mg sin हाँ अभी क्या un करना पड़ेगा minus देखो, एक mg sin theta. नहीं, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। म्यू एन माइनस एम जी साइन थीटा। कैन आई से प्रोवाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज m 6/7 g sin theta? हेलो, गेटिंग इट और नॉट? Yes, sir. ये तो मिल गया, ये वाला पहला वाला इक्वेशन। अच्छा, एफ नेट इज एम ए अलोंग वाई एक्सिस, बोलो क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस पे एफ नेट इज एम ए लगाओ यार, जल्दी जल्दी। एम जी mg कॉस थीटा, cos theta minus n. ए टी कहाँ किधर गया? 3/7 जी कॉस थीटा। n will be mg cos theta 1 minus 3/7, that is 4/7 बराबर क्या? हेलो 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 हेलो, Yes, sir. आपको क्या मांगता है इधर? एंगल थीटा चाहिए, थीटा, ओके थीटा। अब एक काम करो, ये इक्वेशन दिख रहा है न्यू वाला, तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं, n की जगह वैल्यू डालते हैं। तो म्यू एन, एन ये है ना मेरे पास, म्यू एम जी कॉस थीटा 4/7 इज इक्वल टू, इसको इधर ले ले दो, एम जी साइन थीटा कॉमन निकालू 1 प्लस 6/7। आई ऑल देयर, व्हाट एम आई डूइंग मैन? हेलो, Yes, sir. अब क्या हो रहा है देखना यार, ये एम जी वैसे ही उड़ गया। ये निकाल लो ना, tan थीटा मिलेगा ना, हेलो डिवाइड करके, यस और नो? हेलो यार, ये साइन अपॉन कॉस ले लो नीचे, इसको इसको नीचे ले लो, 4/7 अपॉन 1 प्लस 6/7 कितना होता है? 4/7 अपॉन 1 प्लस 6/7 4/13. 4/13, तो देख लेना 4 μ/13 आएगा। हेलो हेलो हेलो, यस और नो? आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग है ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बोलो यार, सही है ना? Yes, sir. एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, याद है? 5 इक्वेशन बनते हैं, लास्ट टाइम बताया था। हेलो, ये याद है ऐसे वाला? हेलो, Yes, sir. ये सॉल्व कर लेना, टाइम रहता था तो मैं सॉल्व कर देता, ठीक है? 5 इक्वेशन बनने वाले हैं, करना है क्या? शुड आई डू? हेलो, शुड आई डू और यू ऑल विल डू? Could you go on the previous question? या प्रीवियस क्वेश्चन, डन, फिनिश्ड? Yes, sir. यार बोलो, ये सिखाओ क्या कि आप लोग कर लेंगे? हेलो हेलो हेलो, हाँ ना बोलो, बताओ फटाफट, कम ऑन डू, So we'll do it. यू विल डू इट ना? ठीक है, तो 3 इक्वेशन बनेंगे बेटा। लास्ट टाइम याद है ना, जमीन था इधर, याद है? इधर जमीन था, याद है?
Yes, sir. इधर ये रॉड है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बेटा कर सकते हैं आप लोग। we'll do question number 36 पर आते हैं। 36 is a good question, last question only। next time we'll be starting with gravitation, level 2, फटाफट हो जाएगा। And, fine. A uniform thin rod is released from rest in a horizontal position as shown in the figure. For what value of x the angular acceleration is minimum? Minimum मतलब maximum या minimum मतलब डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव को हेलो 0 से इक्वेट करना है, सही है ना? Yes, sir. ये समझ में आ गया। चलो बोलो अल्फा कहाँ से निकालेगा? अल्फा कितना रहेगा? Tau by टाउ कितना रहेगा? mgx. मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? ml square by 12 plus mx square. अब इसका डेरिवेटिव निकालने का और 0 इक्वेट मारने का, अंडर हेलो यस और नो? तो d अल्फा by dx should become 0 ना? हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. चलो बाबा u अपॉन v रूल ना? यस और नो सर? हेलो u अपॉन v रूल, तो क्या हो जाएगा v, हेलो अच्छा ये m और m उड़ा दूं ना, चलेगा ना? आर यू गेटिंग इट व्हाट्स हैपनिंग? Yes, sir. ये क्या हो जाएगा v डेरिवेटिव ऑफ u, डेरिवेटिव ऑफ u कितना रहेगा? g हो जाएगा ना? हेलो Yes, sir. माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v, डेरिवेटिव ऑफ v कितना हो जाएगा? 2x. 2x अपॉन व्हाटएवर इज देयर इज इक्वल टू 0 ना, बिकॉज़ अपॉन करेंगे तो अपने आप 0 में चला जाएगा ना। हेलो अरे यार बोलो ना, ये तो 0 में चला जाएगा। Yes, sir. इसको इक्वेट कर दो 0 से, कैन आई से जी जी तो वैसे ही उड़ गया, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर बाय 12 प्लस x स्क्वायर। तो x स्क्वायर कितना होता है? l स्क्वायर बाय 12 ना। हेलो तो x हो जाएगा l बाय 2√3। आर यू देयर विद मी? Yes, sir. अभी एक बार ये x मिल गया तो कुछ नहीं, फिर इसको उठा के अल्फा में डाल दो ना। हेलो हेलो सही है? हेलो यस और नो? Yes, sir. आ गया ना, आंसर मिल गया, खत्म हो गया। आई होप रोटेशनल मोशन इज क्लियर टिल नाउ। अभी जितना मेरा काम था वो कर लिया, अभी आपको अपना काम करना है, तो ठीक है। अब ग्रेविटेशन एंड एसएचएम एकदम इजी इजी वाले चैप्टर्स है, एंड देन वील गो टू करंट वाले चैप्टर्स, ठीक है? चलो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय, वील मीट ऑन मंडे मॉर्निंग। Bye, sir. Thank you. बाय, थैंक यू। I